Hello all, the topic for today is gluteus maximus. So, firstly we will be discussing about the anatomy of the gluteus maximus. So, if we talk about origin of gluteus maximus, it takes place from the posterior gluteal line. The surface between the posterior gluteal line and the sacrum, मतलब कि ये वाला surface, and the lateral surface and the posterior surface of the sacrum, means it includes this portion of the sacrum and also from the lateral surface of the coccyx. मतलब कि this is coccyx, this is sacrum, posterior and the lateral surface of the sacrum is included in the origin of the gluteus maximus. The lateral surface of coccyx is also included, and the posterior gluteal line and posterior surface. So this becomes the whole origin of the gluteus maximus muscle. Now the insertion takes place onto the iliotibial band, which is the connective tissue band which inserts onto the femoral lateral condyle, and also the second insertion of the gluteus maximus takes place onto the gluteal tuberosity hair on the femur, and it lies between the insertion of the vastus lateralis and the adductor magnus. Okay, so we talked about the origin and insertion of the gluteus maximus. Now moving on to the action of the gluteus maximus. So the main actions of gluteus maximus are extension, the external rotation of the hip, and the adduction of the hip joint. Okay, we'll be talking about it in later in the video. Now firstly I'll be explaining about the length tension relationship in case of gluteus maximus muscle. We have previously talked in the video of multifidus that how the length tension relationship affects the property of the muscle. तो अगर हम लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ग्राफ को प्लॉट करते हैं फॉर ग्लूटियस मैक्सिमस, the gluteus maximus muscle lies here, from here to here, मतलब उसकी जो sarcomere की length है, it acquires the position in the descending limb of length tension graph. So if we plot this graph, so the gluteus maximus is lying here, मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया था कि द मसल्स विच आर लाइंग हेयर इन द लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ग्राफ हैव अ सार्कोमेर लाइक दिस, मतलब कि उनके एक्टिन मायोसिन की जो बाइंडिंग है दैट इज दिस मच, एंड जो यहाँ पे लाई करते हैं उनकी बाइंडिंग इज स्लाइटली लेस एज कम्पेयर टू दिस, एंड जो सार्कोमेर यहाँ लाई करेंगे इस ग्राफ में दे हैव अ वेरी मिनिमल बाइंडिंग बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन इन द रेस्टिंग लेंथ, मतलब कि जो उनकी रेस्टिंग लेंथ होगी इनके अंदर जो एक्टिन एंड मायोसिन की बाइंडिंग है इट विल बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दीज मसल्स. सो अगर ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो टेंशन है वो कम होगा. मतलब अगर हिप फ्लेक्शन की कंडीशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूटियस मैक्सिमस का जो एक्शन है हिप एक्सटेंशन, तो अगर हिप फ्लेक्शन हो रहा है तो ग्लूटियस मैक्सिमस विल बी लेंथेड, तो मतलब उसमें उस टाइम पे जो टेंशन है वो बहुत कम होगा. तो अगर टेंशन कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंटिन्यूसली कोई मसल लेंथनिंग पोजीशन में है तो मतलब उसमें टेंशन बहुत कम हुआ, एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेंशन जो उसका वर्क है, वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी कम हुई, एंड अगर ये कम होता है तो मसल किस में जाएगी, अट्रॉफी में. सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन कंक्लूड दैट अगर हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस कॉन्टिन्यूसली लेंथनिंग पोजीशन में है या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज टेंशन की पोजीशन में है तो इट विल रिजल्ट इन अट्रॉफी ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल. Secondly, talking about the normal length of the sarcomere fibers of gluteus is between 2 to 3 micrometers. Okay, the resting length is 2 to 3 micrometers. तो नॉर्मल सार्कोमेर की रेस्टिंग रेंज होती है 1.5 माइक्रोमीटर टू 3.5
माइक्रोमीटर्स। तो अगर हम देखें ग्लूटियस मैक्सिमस की नॉर्मल लेंथ है 2 to 3, तो अगर ये ऑलरेडी लेंथन पोजिशन में काउंट है, तो अगर हम इसे फर्दर लेंथनिंग में ले जाएंगे तो इट विल ऑब्वियसली रिजल्ट इन अट्रॉफी. नाउ I will like to discuss a point here, and according to many studies it is shown that जो gluteus maximus के fibers हैं that are very much important in case of stability and mobility. So if we talk about the various fibers of gluteus maximus, they are अगर हम कोई भी मसल की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 आर स्लो ट्विच फाइबर्स एंड द टाइप 2 आर फास्ट ट्विच फाइबर्स. अब स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स क्या होते हैं? स्लो ट्विच फाइबर्स मीन्स जो कि बहुत देर के बाद एक्टिवेट होते हैं, मतलब कि दे रिक्वायर इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस टू गेट एक्टिवेटेड, और जो कि बहुत देर तक काम करते हैं. फास्ट ट्विच क्या होते हैं? दे जस्ट एक्टिवेट एंड जल्दी से अच्छे से मोबिलाइज करके, आई मीन मूवमेंट प्रोड्यूस करके, एंड देन दे गेट फटीग इजीली. तो स्लो ट्विच फाइबर्स अगर बहुत देर तक काम कर सकते हैं तो व्हाट इट मीन्स, ये स्टेबलाइजेशन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे या मोबिलाइजेशन? ऑब्वियसली स्टेबलाइजेशन, क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर जॉइंट को बहुत टाइम तक डिस्प्लेस होने से बचाना. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो मसल्स है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट करके रखें जिस वजह से हमारा जॉइंट डिस्प्लेस ना हो. और जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं दे वर्क्स एज मोबिलाइजर्स. जो भी फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं जिस भी मसल में दे वर्क एज मोबिलाइजर. तो अगर हम ग्लूटियस मैक्सिमस के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इट इज़ नॉर्मली फाउंड दैट दे बोथ आर इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट. जैसे कि ग्लूटियस मैक्सिमस में अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस इट इज शोन दैट स्लो ट्विच फाइबर्स आर 52% एंड दीज आर 48% इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स. तो सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि स्लो ट्विच फाइबर्स 52% मतलब थोड़ा इंक्रीज इनमें क्यों है? इट इज़ बिकॉज अगर हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है तो हमारे, अगर हम उसके एक्शंस की बात करें तो देयर आर अदर मसल्स ऑल्सो जो कि एक्शन प्रोवाइड करवा सकती है हिप को, बट जो ग्लूटियस मैक्सिमस है इट प्लेज अ मेजर रोल इन स्टेबलाइजेशन एट वेरियस जॉइंट्स इन द लंबोपेल्विक रीजन. वी विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर. नाउ एक और स्टडी के हिसाब से इट इज शोन दैट आर्थराइटिक पेशेंट द percentage of slow twitch fibers was observed to be 68%. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिक जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमें पता है कि जो जॉइंट की स्टेबिलिटी होती है इट इज़ डिक्रीज. तो अगर जॉइंट की स्टेबिलिटी डिक्रीज है तो हमारे जो भी मसल्स सराउंडिंग द जॉइंट है उन्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब उनको ज़्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा कि वो उस जॉइंट को स्टेबल रख सके, क्योंकि जो जॉइंट की खुद की जो प्रॉपर्टी थी स्टेबलाइज होने की दैट इज डिक्रीज. तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट है उसमें अगर स्लो ट्विच फाइबर्स बड़े में हैं, मतलब कि उसका जो प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबलाइजेशन है ग्लूटियस मैक्सिमस की इट इज इंक्रीज. तो इस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट्स में स्लो ट्विच फाइबर्स आर ऑब्जर्व्ड इन मोर क्वांटिटी. नाउ वी विल मूव on to the stabilizing and mobilizing property of the gluteus maximus. I will be discussing कि gluteus maximus कैसे it is a great stabilizer and how it mobilizes all the joints like a hip joint, and it is the main mobilizer at the hip joint. So I will be discussing how. Firstly, we will be talking about how it stabilizes the various joint which it surrounds. So there are two stabilizers, local and global. The two, it stabilizes the joints in two ways, local and the global. Local means जो भी joint है जिसको gluteus maximus surround कर रहा है, केवल वहाँ जो stabilization है that how it is done by gluteus maximus. Firstly, segmental stabilization. Segment मतलब of a particular
एरिया और अ रीजन। तो ग्लूटियस मैक्सिमस का वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस है उसका ओरिजिन सैक्रम से होता है, मतलब एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सैक्रम। तो जो सैक्रोआइलिक जॉइंट इज हेयर, तो ये सैक्रोआइलिक जॉइंट को डेफिनेटली कवर करता है। तो सेगमेंटल स्टेबलाइजेशन में इट स्टेबलाइज द सैक्रोआइलिक जॉइंट। अब वो सैक्रोआइलिक जॉइंट को कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, कंसिडर दिस एज अ सैक्रम एंड दिस एज द हमारी पेल्विक बोन जो कि सैक्रम के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो अगर हमारा सैक्रम न्यूटेशन में जाएगा, मतलब कि अगर उसका बेस आगे की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो जो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस है वो जो कि यहाँ से जा रही थी इस तरीके से, जो ग्लूटियस मैक्सिमस जा रही थी, तो अगर ये आगे की तरफ मूव हो रहा है तो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस में टेंशन बढ़ेगा। तो अगर हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस में टेंशन बढ़ा, मतलब कि इट विल प्रिवेंट एक्सेसिव न्यूटेशन, मतलब कि ज्यादा न्यूटेशन को जो ग्लूटियस मैक्सिमस के कॉन्ट्रैक्शन वो प्रिवेंट करेगा। हेंस सेगमेंटल स्टेबलाइजेशन ऑफ सैक्रोआइलिक जॉइंट इज डन बाय ग्लूटियस मैक्सिमस के कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंडली, इट प्रिवेंट्स द फेमोरल हेड ट्रांसलेशन। अब फेमोरल हेड ट्रांसलेशन क्या होता है, जो हमारा एसिटाबुलर कैविटी है उसके अंदर जो हमारा फेमोरल हेड मूव कर रहा है ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसिडर इट कि यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है, तो कंसिडर दैट साइड एज, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एंटीरियर पोर्शन, दिस इज पोस्टीरियर पोर्शन। तो अगर हमारी फीमर जो है वो ऐसे मूव कर रही है फ्लेक्शन में, तो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस जो है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओके, सो एक्सेसिव जो हमारा फ्लेक्शन है इट विल रिजल्ट कि हमारा फीमर का हेड जो है वो ग्लाइड पोस्टीरियरली करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल, क्योंकि फीमर का जो हेड है इट इज कॉन्वेक्स इन नेचर। तो अगर कॉन्वेक्स मूव कर रहा है आगे की तरफ तो हमारा पोस्टीरियर ट्रांसलेशन बढ़ेगा। ओके, तो अगर हमारा एक्सेसिव पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हिप फ्लेक्सर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, अगर हिप फ्लेक्सर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब कि हमारी फीमर जो है एज कंपेयर्ड टू पहले वो हमारी स्ट्रेट होती जा रही है। अगर वो स्ट्रेट हुई तो हमारा फेमोरल हेड वो वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आ रहा है, एसिटाबुलर के कॉन्टैक्ट में जो उसकी न्यूट्रल पोजीशन थी। ओके, कंसिडर दिस एज एसिटाबुलम। तो अगर हमारा फ्लेक्शन हो रहा है तो मतलब पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ज्यादा हुआ। ओके, तो हमारे हिप फ्लेक्सर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब हमारा फीमर सीधा हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हमारा हिप एक्सटेंशन ज्यादा हो रहा है तो मतलब कि जो हमारा फीमर का हेड है वो एंटीरियरली ज्यादा ट्रांसलेट करेगा, एंड उसे बचाने के लिए जो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस है वो एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी, जिससे कि हमारा जो फर्दर ट्रांसलेशन है दैट गेट्स प्रिवेंटेड। ओके, देन थर्डली विल बी टॉकिंग कि हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस नी एक्सटेंशन में भी स्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस करती है। ओके, क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस का जो इंसर्शन है इट इज ऑन टू द इलियोटिबियल बैंड। इलियोटिबियल बैंड अब कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है, कंसिडर दैट ये फीमर का लोअर एंड है, कंसिडर दैट दिस इज द लोअर एंड ऑफ फीमर। तो हमारा इलियोटिबियल बैंड इंसर्ट्स ऑन टू द लेटरल कॉन्डाइल, दिस इज द लेटरल कॉन्डाइल। तो हमारा जो इलियोटिबियल बैंड यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है एंड हमारा जो नी का एक्सटेंशन हो रहा है दैट इज व्हेन हमारी फीमर एंड टिबिया आर इन सिंगल लाइन। तो जो हमारे नी का एक्सटेंशन होगा उस केस में जो ग्लूटियस मैक्सिमस है इट विल स्टेबलाइज द फीमर, मतलब हमारे फीमर का एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करके इट विल स्टेबलाइज द फीमर ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वो एज अ ग्लोबल स्टेबलाइजर कैसे काम कर रही है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है that forms the most important part of the posterior oblique sling. अब posterior oblique sling क्या होता है, as the name suggests, posterior oblique sling जो है it is formed by the latissimus dorsi, the thoracolumbar fascia and the gluteus maximus of the contralateral. So if we talk about the latissimus dorsi of the left hand side, then and the gluteus maximus of the right hand side, तो gluteus maximus जो है it is going here and the latissimus is here and thoracolumbar fascia जो है that is fascia
which surrounds the posterior region of the thorax and the lumbar region. So अगर now talking about the walking, तो अगर हम वॉक करते हैं तो वी नो कि हमारा जो एक पैर है दैट फर्स्ट इज ऑलवेज इन अ हील स्ट्राइक. तो अगर एक पैर हील, जो पैर हमारा हील स्ट्राइक में है, उसके अंदर हिप फ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर ग्राउंड पे हमें हमारी हील रखनी है तो वी नीड टू फ्लेक्स आवर हिप. ओके, तो अगर हिप फ्लेक्शन हो रहा है तो जो हमारा हिप एक्सटेंसर्स है दे विल बी इन अ लेंथेन पोजिशन. तो मतलब कि ग्लूटियस मैक्सिमस विल बी इन द लेंथेन पोजिशन. ओके, तो मतलब कि अगर हमारा हील स्ट्राइक हो रहा है तो जो हमारी जी मैक्स है दैट इज लेंथेन. ओके, नाउ इफ स्ट्राइकिंग पोजिशन मतलब कि जो स्टांस पेस वाला लेग है दैट इज इन हिप फ्लेक्शन. तो वी नो कि ड्यूरिंग वॉकिंग हमारा जो कॉन्ट्रालेटरल हैंड है दैट गोज इन फ्लेक्शन. तो इफ आवर राइट leg is in heel strike position, our left hand will be in flexion. Okay, so अगर इस वाले हाथ में फ्लेक्शन हो रहा है मतलब ह्यूमरस इज मूविंग फॉरवर्ड, तो जो पोस्टीरियर मसल्स है दैट आर अटैच्ड ऑन टू द ह्यूमरस विल स्ट्रेच. ओके, देन इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी लैट्स है वो स्ट्रेच होगी, क्योंकि अगर हम हमारा हैंड फ्लेक्स कर रहे हैं तो अगर ये बाइसेपिटल ग्रूव है यहाँ पर एंड लैट्स इज अटैचिंग ऑन टू हेयर, तो जो हमारा पीछे की मसल है, क्योंकि लैट्स तो अगर आगे आ रही है तो उसका ओरिजिन इंसर्शन दूर गया, मतलब कि इट विल बी ऑल्सो लेंथन. एंड वी नो कि लैट्स एंड जो जी मैक्स है दे बोथ आर अटैच्ड ऑन टू द thoracolumbar fascia. सो इफ द बोथ मसल्स आर स्ट्रेचिंग तो जो thoracolumbar fascia है उसके अंदर टेंशन बढ़ेगा. सो दिस इंक्रीज टेंशन इन द thoracolumbar fascia will prevent the further stretch of these muscles. Okay, and अगर ये further stretch muscles में prevent हो रहा है तो हमारी बॉडी फॉरवर्ड लीनिंग मतलब कि जो ट्रंक का फ्लेक्शन है दैट विल बी प्रिवेंटेड. क्योंकि अगर हिप और हमारी जो एक्सट्रीमिटीज है दे गेट्स इनटू एक्सेसिव फ्लेक्शन तो हमारी ट्रंक अपने आप बॉडी को बैलेंस करने के लिए फ्लेक्शन में जाएगी. सो अगर ये हमारा टेंशन इंक्रीज की वजह से प्रिवेंट हो रहा है तो आवर बॉडी विल गेट स्टेबलाइज. तो दिस इज द वे हाउ आवर ग्लूटियस मैक्सिमस इज वर्किंग टू ग्लोबली स्टेबलाइज आवर बॉडी. Now talking about the mobilizing ability of the gluteus maximus, firstly we will be discussing about how it is called as a primary extensor. If we view in the sagittal plane the femur, we can view it like this. अगर ये we consider it as a femur and अगर हम इसे sagitally देखें तो we can see कि ये head of the femur हुआ. ओके, तो अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो हमारा एक्सटेंशन कैसे होगा, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि लाइन ऑफ एक्सिस इज पासिंग लाइक दिस. तो हमारा एक्सटेंशन क्या हुआ, इस लाइन ऑफ एक्सिस के अराउंड हुआ. तो लाइन ऑफ एक्सिस इज पासिंग लाइक दिस थ्रू द हेड ऑफ फीमर. दिस इज द sagittal section of the femur. Okay, if the line of axis is passing like this, तो अगर हम ग्लूटियस मैक्सिमस इमेजिन करें तो वो ऐसे जाएगी क्योंकि इट इज पोस्टीरियर लाइन पोस्टीरियरली फ्रॉम द फीमर. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस इज दिस. ओके, नाउ अगर मोमेंट आर्म की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि व्हाट इज मोमेंट आर्म. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो अगर ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स, तो व्हाट विल बी द मोमेंट आर्म, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. सो द मोमेंट आर्म इन दिस केस विल बी दिस. अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स द वैल्यू ऑफ दिस मोमेंट आर्म इज 4.6 or 7 सेंटीमीटर्स अप्रोक्सीमेटली. तो अगर ये दिस इज 4.7 सेंटीमीटर इज अ गुड वैल्यू, जिससे कि वो इतना टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस ड्यू टू इट्स फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी, कि वो
हमारे हिप को एक्सटेंशन में ला सके, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी एक्सटेंशन. नाउ the other extensors of the hip includes adductor magnus and the hamstring muscle. They are known as secondary extensors because the momentum of these muscles are less as compared to gluteus maximus. Now talking about the adduction. As we all know, adduction takes place in a frontal plane. So if we consider it as a frontal plane, then the axis of rotation of femur will be passing like this. Okay, viewing it in frontal plane, the axis of rotation is passing from somewhere here, and the line of action of G max will be this. So we can see that gluteus maximus की जो moment arm है, that is very low. It is equal to approximately 0.7 centimeters according to the researchers. ये हमें बताता है कि it is not a potent adductor, मतलब कि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अकेले adduction cause कर सके. तो अगर हम देखें तो जो प्राइमरी हमारे adductor muscles है, they are adductor magnus, adductor longus. इनके जो moment arm है, they are very large as compared to the momentum of the gluteus maximus. So here we can see कि gluteus maximus is considered as a secondary adductor. Now we will be talking about external rotation. The external rotation of the by the gluteus maximus varies according to the various degrees of hip flexion. Primarily talking, if we view the femur in transverse plane, we can see that the line of axis is vertical. So अगर हम इसे transverse plane में देखेंगे तो line of axis will be passing like this. So and the line of force of gluteus maximus will be like this. Okay. We are viewing it in the transverse plane, मतलब we are viewing it superiorly. The line of axis of rotation is passing from here, and the axis of force of gluteus maximus is this, and the value of the momentum is equal to 2.1. So here we can see that it can produce enough amount of external rotation, and as compared to other external rotators, it is a weak external rotator, but we can consider it in this group. If we talk about superior and inferior gemellus, the momentum of these two muscles are 3.1 and 3.3. So we can see that these two muscles can produce more extension as compared to the gluteus maximus. Now talking about various fibers of gluteus maximus during hip flexion, how the hip flexion can affect the rotation by the gluteus maximus muscle. तो अगर हम एंटीरियर फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस की बात करते हैं, तो अगर हमने पहले भी देखा था कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस इज लाइक दिस, व्यूइंग इट सजाइटली. तो जो ग्लूटियस मैक्सिमस है वो ऐसे आ रही है, दिस इज द फीमर, एंड जो ग्लूटियस मैक्सिमस है हमारी, दिस इज कमिंग लाइक दिस फ्रॉम द पोस्टीरियर टू एंटीरियर, सो दैट वो इल्यूटिबल बैंड पे अटैच हो सके. सो समवेयर हेयर इट क्रॉसेस द लाइन ऑफ रोटेशन. तो अगर हम बात करते हैं हिप फ्लेक्शन की, तो हमारी फीमर जो है वो एंटीरियरली रोटेट होती जा रही है. तो मतलब कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये एंड ग्लूटियस मैक्सिमस की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि अगर ये हमारी फ्लेक्शन होती जा रही है तो हमारी जो ग्लूटियस का फोर्स है वो अभी ऐसे है, बाद में इट विल बी लाइक दिस. सो द डिस्टेंस विल बी ओनली दिस मच, और अभी इतना डिस्टेंस इसमें है. तो इससे हमें पता पड़ता है कि डिस्टेंस इज कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग.
तो अगर हम एंटीरियर फाइबर की बात करें तो एट पर्टिकुलर टाइम जो ये वाले फाइबर्स हैं दे आर द एंटीरियर फाइबर्स, दे क्रॉसेस द फीमर की लाइन। तो दिस रिजल्ट्स कि हमारा अराउंड 60 डिग्री ऑफ हिप फ्लेक्शन जो हमारे एंटीरियर फाइबर्स हैं वो हमारा एक्सटर्नल रोटेशन ना करा के इंटरनल रोटेशन कराएंगे। बट इफ वी टॉक अबाउट बोथ काइंड ऑफ पोस्टीरियर फाइबर्स, वो हमेशा एक्सटर्नल रोटेशन कराते हैं वेदर इट द हिप इज इन 90 डिग्री फ्लेक्शन और 60 डिग्री और 0 डिग्री फ्लेक्शन। So this thing is important while we are assessing about the gluteus maximus dysfunction। जैसे कि अगर हमारा जो posterior fibers है if they are weak we can treat them easily, but the interior fibers अगर हमारे gluteus maximus के they are weak or they are in spasm, it is very difficult to treat these muscles. Lastly, I would like to mention a point that we have already discussed in the length tension relationship कि gluteus maximus की जो cross sectional area है it is very much high। तो ऐसा इसलिए होता है, it all depends upon the muscle architecture। अब muscle architecture what it means कि हमारा muscle जो है वो कैसे फॉर्म हुआ है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है कि हमारे जो सार्कोमेर है उनका ओरिएंटेशन कैसा है। फर्स्ट इज एंड टू एंड। एज द नेम सजेस्ट एंड टू एंड का मतलब क्या हुआ कि वो एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, मतलब like this। If this is the first sarcomere, जो हमारा second sarcomere है, it will follow the ending of the first sarcomere, मतलब कि it will be joined like this। तो मतलब sarcomere जो है उसका पोजीशन क्या हुआ कि अगर सार्कोमेर हमारे एक साथ ना होके लॉन्गिट्यूडनली अटैच है, मतलब वो एक मसल को लंबा फाइबर बनाएंगे, तो ऐसे जो मसल फाइबर्स होते हैं उनका लेंथ इंक्रीज्ड है, मतलब लेंथ इज वेरी मच। सो हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मसल है इनका फोर्स जनरेशन इस पावर से होगा कि अगर हर सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट करता है एक ही लाइन में तो फोर्स द टॉप जनरेशन विल बी हायर। ओके, सो दीज आर द मसल्स विच आर रिक्वायर्ड जब हमें बहुत अच्छे से मूवमेंट प्रोड्यूस करना है। द सेकेंड टाइप ऑफ मसल आर्किटेक्चर इज साइड बाय साइड। अब इससे भी हमें नेम से पता पड़ रहा है कि अगर साइड बाय साइड है मीन्स अगर एक मसल फाइबर ऐसा है तो दूसरा मसल फाइबर विल बी अलाइन जस्ट नियर टू द फर्स्ट फाइबर। तो ये क्या करेगा, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे इन तीनों मसल्स में एक साथ फोर्स जनरेट हुआ, अब अगर इन तीनों मसल्स में एक साथ फोर्स जनरेट हो रहा है तो मतलब दे ऑल विल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर टू जनरेट फोर्स। तो मतलब ये दे विल जनरेट अ फोर्स फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। और अगर ये जो 3 सार्कोमेर्स हैं फॉर एग्जांपल ये हर लेयर में एक साथ इसी तरीके से अलाइंड है तो ऑब्वियसली इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा तो स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा। तो वी नो कि ग्लूटियस मैक्सिमस इज मेंट फॉर स्टेबलाइजेशन most importantly, so we can observe more number of side to side fiber arrangement in gluteus maximus muscle. So this is all for the today's video.